The most merciful, respected students, friend Falgar. This is ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 030563194464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Respected students, today we'll discuss what is phonetics, organs of speech. We'll also discuss manner of articulation. Yesterday we discussed in detail about articulations and you could say place of articulations, but today we'll discuss manners of articulation, how sound is produced, whether it creates plosive sound, fricative sound, affricative sound, lateral sound, nasal sound. So we'll see all that. Let's see. What is phonetics, organs of speech, and then consonant articulations, voicing, the concept of voicing, voiced sound or voiceless sound. How can you recognize whether the sound is voiced or voiceless? Let's see. What is phonetics? Phonology, phonetics, phonemics. What is phonetics? The general study of the characteristic of speech sound. Please open your assignment. There is a definition of phonetics. We have already seen. Let's see. Have a look. The study of speech sound is called phonetics. The inventory means stock. The inventory and structure of sound speech. It's also called phonetics. The concrete, instrumentally measurable physical properties and production of speech sound. So these are definitions given by various you could say people. They have given the definitions. The study of production, transmissions and receptions of speech sound. I think yesterday we also discussed the same definition. The study of production, sound, how sound is produced, transmission, how sound is conveyed from one end to another end, from speaker to receptor, from speaker to auditory level, from articulation to auditory level. How does it reach? We'll study in phonetics. We discuss and we study in phonetics. Simple definition. In general definition, you can say, what is phonetics? The study of sound production. ऐसी स्टडी जो साउंड की प्रोडक्शन की स्टडी करती है, और इसकी मेन ब्रांचेस जो हमने कल डिस्कस की थी, अक्यूस्टिक फोनेटिक, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स एंड ऑडिटरी फोनेटिक्स. Acoustic phonetics mean all the property, all the gadgets, all the tool, all the instruments which are involved in a way to study the physical property of human speech sound. वो तमाम इंस्ट्रूमेंट, वो तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो तमाम फिजिकल जो ऑर्गन्स हैं इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन के अंदर, चाहे उसमें लंग्स हो, फेरिंग्स हो, लेरिंग्स हो, उसके अंदर यूवला हो, उसके अंदर ग्लोटस हो, उसके अंदर दीगर जो ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, उन सब की स्टडी जो है वो अक्यूस्टिक फोनेटिक्स कहलाता है. और जब हम अक्यूस्टिक फोनेटिक को स्टडी करते हैं तो ये अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेती है ऑडिटरी और आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, क्योंकि वो भी उसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन उनको हम सेपरेटली भी स्टडी कर सकते हैं. फोनेटिक्स की 3 ब्रांचेस हैं: अक्यूस्टिक फोनेटिक्स, ऑडिटरी फोनेटिक्स एंड आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स. Acoustic phonetics, transmissions of speech sound through the air. आपका जो बॉडी है, आपके जो लंग्स हैं, ये हम जो आवाज निकाल रहे हैं, ये हमें ऐसे लगता है कि जस्ट मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, इसके पीछे कौन सा कोई सिस्टम है, लेकिन इसके पीछे एक मुकम्मल सिस्टमेटिक एक निज़ाम है इसके अंदर. एक इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू हम बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा मेन रोल जो अदा करता है वो है लंग्स, क्योंकि लंग्स जो हैं वो हवा को फ्लो करवाने में, यानी जो एयर है हमारे अंदर जो फ्लो उसका हो रहा है, उसमें मेन रोल जो है रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है हमारा, उसमें लंग्स का बहुत ज़्यादा किरदार है.
तो ये सारा जो रोल है ये लंग्स प्ले करते हैं, और अंदर जो हमारे सारे लेरिंग्स है या फेरिंग्स है या एपिग्लोटस है या हमारे अंदर जो माउथ के अंदर सारा सिस्टम है, उसकी स्टडी जो है, उसकी ट्रांसमिशन जो है वो डेफिनेटली एयर्स के थ्रू होती है, एयर के थ्रू होती है। तो ये सारा सिस्टम जो है ये इसके थ्रू होता है। अक्यूस्टिक फोनेटिक्स में हम वो सिस्टम को स्टडी करते हैं जो ये पूरे एयर के जो आवाज को प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होता है। मैंने बताया कि जब हम इस सिस्टम को स्टडी करेंगे तो उसके अंदर फिर वो सारी चीजें आएंगी। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स भी आएगा, क्योंकि आर्टिकुलेटर्स भी तो है ना, वो चाहे वो लंग्स हों, चाहे वो लेरिंग्स हो, चाहे वो फेरिंग्स हो, चाहे वो एपिग्लोटस हो, चाहे वो यूवला हो, चाहे वो हार्ड साउंड हो, सॉफ्ट साउंड हो, हम जो प्रोड्यूस करते हैं तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अक्यूस्टिक फोनेटिक्स को कहते हैं। ऑडिटरी का मतलब आपको पता है, ऑडिटरी बात मैं आपसे कहता हूँ एम आई ऑडिबल टू यू। ऑडिबल का मतलब होता है क्या मुझे आप सुन पा रही हैं। ऑडिबल का मतलब होता है सुनना, किसी को सुनना या किसी चीज को सुनना। तो ऑडिटरी रिलेटेड है परसेप्शन, सुनने से रिलेटेड। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड। कल भी हमने देखा, आपको असाइनमेंट मैंने सेंड की हुई है, उस असाइनमेंट को देख लें, उसके बाद स्नैपशॉट्स भी सेंड किए हैं, उनको भी देख लीजिएगा, वही चीज़ें। अब देखें मेरे सामने एक आपकी असाइनमेंट जो है, आप अपनी असाइनमेंट को ओपन करें। उस असाइनमेंट में देखें एक आवाज़, एक फीमेल है वो बोल रही है, और उससे आवाज़ के जो वेव्स हैं वो एक कान में दाखिल हो रही हैं। जहां से वो बोल रही है उसको कहते हैं आर्टिकुलेटरी, यानी उसे प्रोडक्शन भी कहते हैं, आर्टिकुलेटरी भी कहते हैं, या आवाज भी कहते हैं। यानी वो आवाज निकाल रही है, और अल्टीमेटली जो ऑडिटरी है, कान जो है उसको सुन रहे हैं, ट्रांसमिशन जो है जो हो रही है। अक्यूस्टिक फोनेटिक का फंक्शन ये है कि आवाज अंदर से कैसे निकल के आई है उस सिस्टम से, कैसे वेव्स के अंदर गई है, कैसे कानों के अंदर गई है। अब ये अक्यूस्टिक फोनेटिक्स जो है ये सेंटर में है, ये दोनों चीजों को रिलेट कर लेता है। इसने आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स को भी स्टडी करना है और ऑडिटरी को भी, लेकिन उसका जो ओवरऑल मकसद ये है, या ओवरऑल उसका एंड खुद का ये होता है अक्यूस्टिक फोनेटिक्स का, कि वो सारी वेव्स को स्टडी करे, उन एपरेटस को, उन टूल्स को, उस सिस्टम को जिसके जरिए आवाज निकल के आई है। और उसमें आजकल जदीद चीजें भी हैं, वो भी इस्तेमाल होंगी जो लेबोरेटरी में यूज होती हैं, आवाज़ की रिकग्निशन में, इवन के सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी अक्यूस्टिक फोनेटिक्स में। जब आप एमफिल करेंगी, पीएचडी करेंगी, तो ये चीज़ें जब आप वहाँ पे स्टडी करेंगे बड़ी डीप लेवल पे, तो फिर आप इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करेंगे। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जो है हमारा टॉपिक है आपकी असाइनमेंट में। ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, स्पीच के ऑर्गन्स, उसके आर्टिकुलेटर्स, उसको हमने स्टडी करना है। उसमें मैंने बताया टंग है, उसके बाद लिप्स हैं, अपर लिप्स हैं, लोअर लिप्स हैं, और टिप ऑफ द टंग है, फ्रंट ऑफ द टंग है, सेंटर ऑफ द टंग है, एंड ऑफ द टंग है, यूवला है, उसके बाद टीथ है, अल्वीलर रिज है, हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट को वेलम भी कहते हैं। अल्वीलर रिज की जो साउंड हम निकालते हैं, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, फेरिंग्स, लेरिंग्स, क्लोटस, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। आर्टिकुलेटर्स भी कहते हैं इनको। अच्छा, इनमें कुछ आर्टिकुलेटर्स ऐसे हैं जो पैसिव हैं, जो इतनी मूवमेंट नहीं करते, उनकी ज़रूरत है, वो अपनी जगह पे रहते हैं, ना वाइब्रेट करते। लेकिन कुछ जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं। ये आपने खुद अंडरस्टैंड करना है। अब मैं आपसे पूछूं कि जो टंग है, जो आपकी ज़बान है जिससे हम बोलते हैं, तो ये कौन सा आर्टिकुलेटर है, तो आपको फौरन पता है ये वाइब्रेट करता है, मूवमेंट में रहता है, तो ये है वाइब्रेंट भी है, इसे हम एक्टिव आर्टिकुलेटर कहेंगे। बात बार वो पूछ लेता है डिस्कस एक्टिव आर्टिकुलेटर्स एंड पैसिव आर्टिकुलेटर। तो पैसिव आर्टिकुलेटर्स ऐसे हैं जो इतनी मूवमेंट नहीं करते, अपनी जगह पे रहते हैं, उनका रोल जो है वो बड़ा सुस्त सा होता है, और वो इतनी मूवमेंट वाइब्रेशन में नहीं लाते बोलते हो, तो सारे पैसिव है। पैसिव ज्यादा है, एक्टिव एक ही है। एक्टिव जो है ज्यादा एक्टिव है वो टंग ही है, जुबान है। उसके बाद आगे देखें, पूरे नक्शे बने हुए हैं आपके सामने, इसको ऑब्जर्व करें। आगे येलो और व्हाइट एक पिक्चर आपके सामने आएगी, उसका बैकग्राउंड येलो भी है और व्हाइट भी है। देखिएगा,
लंग्स लिखा हुआ है, उसके साथ एक पिक्चर बनी हुई है और हर पॉइंट को उसके साथ पॉइंट किया हुआ है। मिसाल के तौर पर अल्वीलर रिज है तो अल्वीलर रिज का को एक एरो से जाहिर किया गया। टंग जो है, आवाज जो जबान है, उस जबान का पूरा नाम उसके ऊपर लिखा हुआ कि भाई ये जबान है। उसके बाद लिप्स जो है उसको भी ये पॉइंट किया गया है और डेंटस लिखा हुआ है। फिर उसके बाद टीथ को भी पॉइंट किया गया। नेसल कैविटी, हमारे नाक के ऊपर ना ये कैविटी होती है, नेसल कैविटी। एम एन इन ये साउंड जो है, जैसे म न और उसके बाद इन ये साउंड होती है, ये साउंड जो है वो नाक से निकलती है। नेसल कैविटी जो है उससे ये साउंड निकलती है। तो नीचे देखें पैलेट, हमारे जो माउथ है, हमारे माउथ का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको जो सख्त है, थोड़ा सा हार्ड है, उसे कहते हैं हार्ड पैलेट। उसके आगे देखें आप, जहां से ख ख ग ख, इट्स कैट, इट्स माई कार। तो आप ये साउंड जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपको फील होगा कि ये मेरी सॉफ्ट पैलेट को जाके टच करती है। तो आपकी जो हार्ड पैलेट है उसकी भी एक साउंड निकलेगी और जो सॉफ्ट पैलेट है उससे भी एक साउंड निकलेगी। ये सारी साउंड्स जो हैं अभी हम स्टडी करेंगे। और कल तो हमने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो थे वो प्लेसेस थी, वो प्लेसेस जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती हैं, इनको हमने डिटेल डिस्कस कर लिया था। आज हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन देखेंगे बेसिकली। आगे मजीद बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है पिक्चर, अल्वीलर रिज है, पैलेट बताई गई है, ओरल कैविटी बताई गई है, वेलम जो है, वेलम को हम सॉफ्ट पैलेट भी कहते हैं, यानी ये कि फिर आप यहाँ पे जो आगे पिक्चर है, इस पिक्चर पे आप देखें कि टिप ऑफ द टंग भी बताई गई है, भाई ये टिप ऑफ द टंग है। और उसके बाद बॉडी पूरी जो अपनी जबान है उसको एक बॉडी का नाम दिया गया, ये पूरा उसका बॉडी है। और उसकी रूट पार्ट भी होता है, उसका मिडल पार्ट भी होता है, आपकी टंग का, आपकी जबान का। एपिग्लोटस भी डिस्कस किया गया, यहाँ पे एपिग्लोटस के बारे में भी बताया गया, आप देख लें। तो एपिग्लोटस जो होता है ये क्या करता है, एक थिन स्ट्रक्चर होता है ये, दैट कवर्स अ ग्लोटस ड्यूरिंग द स्वेलविंग प्रोसेस। जब आप स्वेलविंग का प्रोसेस करते हैं, किसी चीज़ खुराक वगैरह को निगलते हैं, तो क्या होता है ये इसको फेरिंग्स में नहीं गिरने देता, लेरिंग्स में नहीं गिरने देता। तो ये आपका जो एपिग्लोटस है ये आपकी हेल्प करता है कि आपकी जो लेरिंग्स है उसमें कोई खुराक ना जाए, तो ये उससे रोकता है, इसको कहते हैं एपिग्लोटस। और उसके बाद लेरिंग्स है, ये वोकल कॉर्ड्स भी, इसको हम एडम एप्पल भी कहते हैं, ये मैंने कल भी बताया था। इससे आप पता कर सकते हैं कि ये वॉइस साउंड है या वॉइसलेस है। नीचे वो भी बड़ी डिटेल दी गई है, वो भी हम देखते हैं। फिर वही है पिक्चर, इसको देख लीजिएगा। लिप्स, लिबियल साउंड होती है, लिबियल साउंड होती है, बिलिबियल साउंड होती है, और उसके बाद लिबियोडेंटल साउंड होती है। ये देख लें, आपका जो आपका जो ये दांत हैं, और उसके बाद टीथ हैं, और उसके बाद टंग है, और उसके बाद ये सारी पिक्चर बनी हुई है कि अपर टीथ जो है उसको डेंटम कहते हैं, या डेंटल भी कहते हैं। लोअर टीथ को डेंटम कहते हैं, इसको डेंटल भी कहते हैं, यानी लोअर और अपर टीथ भी होते हैं। यूवला को भी हमने देखा, ये गले में होता है। ब्लेड ऑफ द टंग, हमारी जो जुबान है उसका एक ब्लेड होता है, उसको उसने नाम दिया हुआ ब्लेड ऑफ द टंग। ये 4 है, 4 पिक्चर को देख लें। ये पूरा जो ऊपर वाली जो आपकी पूरी जुबान है उसको उसने ऐसे कवर करके आपको बताया कि भाई ये ब्लेड है उसका। उसके बाद है जी बैक ऑफ द टंग, डोर्सल कहते हैं उसको। मिडल ऑफ द टंग, मीडियम कहते हैं उसको, मिडल ऑफ द टंग। ये साथ आप देख लें, 1 2 3 4 5 उसके साथ उसका इशारा दिया हुआ है, मिडल ऑफ द टंग। मिडल ऑफ द टंग कि भाई ये मिडल है, ये आपको उसने अंडरस्टैंड करवाने के लिए, समझाने के लिए। टिप ऑफ द टंग, टिप ऑफ द टंग से बड़ा फंक्शन है इसका, इससे भी बड़ी साउंड प्रोड्यूस होती हैं। ये देखें, ये यूवला जो है ये भी उसने आपको बताया कि ये है। और उसके बाद जो आपकी ज़बान है उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4, यानी ये 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है।
टिप को कहते हैं एपेक्स भी कहते हैं और एपिकल भी कहते हैं, नोट कर लें। ब्लेड जो है इसको लेमिनल भी कहते हैं, और मिडल जो है, मिडल को जो तीसरा हिस्सा है जो मीडियम भी कहते हैं, मिडल भी कहते हैं। बैक को डोर्सल कहते हैं, यानी ये उसके नाम है, आप इनसे याद कर लें कि टिप, ब्लेड, मिडल, बैक, ये सिंपल वे है इसे याद करने का। यानी इसकी आपकी जो ज़ुबान है उसके 4 हिस्से होते हैं और इससे डिफरेंट लेटर जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। हम आवाज़ें भी निकाल सकते हैं, साउंड भी इनसे निकाल सकते हैं। रिज, अल्विलर रिज भी इसको कहते हैं। ये आपके जो अपर टीथ हैं, अगर आप इनके बैक पे देखें तो थोड़ा सा ऊपरा हुआ हिस्सा, इसको कहते हैं अल्विलर। इससे भी साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे थोल्ट, थॉट, थोल्ट, थोल। टिप ऑफ द टंग फौरन टच करेगी उसको, अल्विलर रिज को, अगर आप था साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। था, थॉट, आई थिंक, आई थिंक, आई थिंक। तो ये साउंड जो है ना, साउंड एवेल्यूएट करती है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। उसके बाद ये हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, वो भी उसने पिक्चर बना के दिखाई हुई है। सॉफ्ट पैलेट को विलर भी कहते हैं, पैलेटल भी कहते हैं उसको। तो ये देख लें, सॉफ्ट पैलेट का भी उसने दिया हुआ है इशारा, आप एरो से समझ सकते हैं कि भाई ये आपकी सॉफ्ट पैलेट है, यहाँ से भी साउंड प्रोड्यूस होगी। आपको डेफिनेशन शायद याद हो कि लिंग्विस्टिक का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो ये है साइंटिफिक स्टडी, ये साइंस है। लिंग्विस्टिक एक सोशल साइंस है, तो साइंटिफिक स्टडी हम इसमें देखते हैं, ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को स्टडी करते हैं और जैसी हूँ वैसे डिस्क्राइब कर देते हैं। इसमें हम किसी को टीच नहीं करते, बट वी डिस्क्राइब लैंग्वेज एज इट इज। जैसी लैंग्वेज है उसे हमने डिस्क्राइब करना है, बिकॉज वी आर लिंग्विस्ट। सेगमेंटल साउंड, अब सेगमेंटल साउंड में क्या है, कॉन्सोनेंट है, वावल है। ये कैसे फॉर्म होते हैं कॉन्सोनेंट? बात सिंपल वे से समझ लें कि अगर आप कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आपकी प्रोडक्शन के, साउंड की प्रोडक्शन के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन आ रही है, कोई कंट्रिक्शन आ रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, कोई रुकावट आ रही है, यानी उसे प्रोड्यूस करते हुए कुछ रुकावट आ रही है, कोई ना कोई रुकावट, स्ट्रक्चर्स आपको फील हो रही है, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं आप। जैसे सी, तो जबान जो है सी। अब देख लें, हमें जरूरत पड़ती है इसको प्रोड्यूस करने के लिए रिस्ट्रिक्शन। तो वेन एवर consonants are formed when air stream is restricted at some point, यानी किसी हद तक आपकी जो आवाज है, जो एयर स्ट्रीम है, वो रिस्ट्रिक्टेड जरूर होगी, फिर कंसोनेंट प्रोड्यूस होगा। डी, सी, पी, एम, एन, क्यू, एस, टी। तो जबकि वावल साउंड जो है, जब आप उसको प्रोड्यूस करेंगे या बोलेंगे तो वो बगैर रिस्ट्रिक्शन के वो आप प्रोड्यूस कर सकेंगे उसको। वावल प्रोड्यूस व्हेन अ रिलेटिवली फ्री फ्लो ऑफ एयर, यानी साउंड जो है, जो आवाज है, वो रिलेटिवली फ्रीली वो फ्लो होगी आपके माउथ से। ए, ई, आई, ओ, यू, इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आसानी से उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। सी बोल के देखें और फी बोल के देखें, ये आपकी जो लिप्स हैं ये भी इन्वॉल्व होंगे। जबकि आप ए बोल के देखें, ए इतनी ज्यादा नहीं, वो कहता है प्रोड्यूस विद रिलेटिवली फ्री फ्लो, उसके कंपैरिजन पे बिल्कुल फ्री आप प्रोड्यूस कर सकेंगे। जैसे सी प्रोड्यूस कर रहे हैं या पी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके मुकाबले में। कंबाइंड वावल साउंड, आर्टिकुलेशंस, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट आर्टिकुलेशन। अब एक चीज है वॉइसिंग, क्या है, व्हाट इज वॉइसिंग? मैंने आपको कल बताया था कि अगर आप अपने एडम एप्पल के ऊपर हाथ रखें, एडम एप्पल मैं आपको बता देता हूं कौन सी होती है। ये जो उभरा हुआ हिस्सा आपका गले में, इसको कहते हैं एडम एप्पल। इसके ऊपर अगर आप हाथ रखें, ये वाइब्रेशन, आप बोले और आपको वाइब्रेशन लगे, फील होगी। अब यहां से हम 2 फिंगर्स जो हैं इसके ऊपर रखेंगे और चीजों को चेक करते जाएंगे कि कौन सी वॉइस है और कौन सी वॉइसलेस है। साउंड विच आर मेड, आगे देखें वॉइस का उसने डेफिनेशन दी है, साउंड विच आर मेड विद वोकल फोल्ड बाय, आपका जो वोकल फोल्ड है, ये जो आपका वोकल फोल्ड है जिसको हम एडम एप्पल कहते हैं, ये वोकल फोल्ड अगर वाइब्रेट होता है तो वो वॉइस साउंड है।
अगर आपका वोकल फोल्ड जो है वाइब्रेशन नहीं होती इसमें, तो वो वॉइसलेस साउंड है। लेट्स सी, आ जाएं। आपके सामने स्केच बना हुआ है, आपने पी बोलना है और अपनी दोनों फिंगर जो है, ये जो एडम एप्पल, ये उभरी हुई जो आपकी हड्डी सी है इधर आपके गले में, इसके ऊपर दोनों फिंगर रखें और आपने बोलना है फी फी। अब यही जो है फिंगर ऐसे रहेंगे इसके ऊपर, फिर आपने बोलना है फी भी, फी फी भी। अब जैसे बी बोलते हैं तो वाइब्रेशन फील होती है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें। दोनों फिंगर्स अपने इस उभरी हुई जो एडम एप्पल है इसके ऊपर रखिएगा, बोलना है आपने फी ठी खे एफ था, और फिर उसके बाद श छ, ये साउंड है, इनको बोलें। और फिर आप बोलें ये नीचे ऑल वावल जो है, जितने वावल हैं वो सारे वॉइस हैं, बी डी क व, और उसके बाद ज। ये जितनी भी साउंड हैं ये आपको वाइब्रेट करती हुई नजर आएंगी, तो इनको कहते हैं वॉइस साउंड। अब वावल में देख लें, जितने भी वावल हैं सारे वावल जो है वो वॉइस्ड होते हैं, उसमें कोई जोन सी भी साउंड आएगी, दे आर ऑल वावल। और वॉइसलेस साउंड कौन सी है? पी की साउंड है वो कहता है, उसके बाद टी की साउंड है, खे की साउंड है, और उसके बाद शा साउंड है, हा साउंड है, छा साउंड है। ये सारे वॉइसलेस हैं, और नीचे वो सारे वावल हैं, जो वावल जो सारे वॉइस हैं। उसके बाद कुछ कॉन्सोनेंट भी इधर लिखे हुए हैं, दे आर वॉइस्ड। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, बलेबियल साउंड, मैंने कल भी बताया था, ऐसी साउंड जो लिप्स के मूवमेंट के साथ प्रोड्यूस होती है, उसको बलेबियल साउंड कहते हैं। द लोअर्स एंड अपर लिप्स अप्रोच टच ईच अदर एज इन द साउंड फी फी फी। लोअर लिप और अपर टीथ, फी फी। लोअर लिप्स यानी द लोअर्स एंड अपर लिप्स, ये दोनों अप्रोच करते हैं, टच, अपने एक दूसरे को टच करने की कोशिश करते हैं, तो पी आप प्रोड्यूस करेंगे, फी बी, या फा पा मा 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 पा फा, ये साउंड है उसकी। तो आप ये अगर साउंड प्रोड्यूस करें तो आप फील करेंगे कि दोनों लिप्स जो हैं एक दूसरे को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। फा बा मा, ये साउंड न, वो नेशनल साउंड बन जाएगी, वह ना कहते हैं। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, अब प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन लिब्योडेंटल साउंड है। द लोअर लिप्स अप्रोचेस और टचेस द अपर टीथ एज इन द साउंड फ व, ये लिब्योडेंटल है। द लोअर लिप्स इसमें अप्रोच करते हैं और टच द अपर टीथ, लोअर लिप अपर टीथ को टच करते हैं, फ व, ये साउंड आप देख लें प्रोड्यूस करके, फ व। उसके बाद डेंटल एंड इंटरडेंटल साउंड, द टिप्स आर द ब्लेड ऑफ द टंग। हमने डिस्कस किया कि जैसे जो हमारी टंग है इसके 4 हिस्से होते हैं, ब्लेड भी होता है, फ्रंट होता है, मिडल होता है, एंड होता है, ये टोटल 4 इसके अपनी ज़बान के पार्ट्स होते हैं। द टिप आर द ब्लेड ऑफ द टंग अप्रोच आर टचेज द अपर टीथ एज इन द साउंड्स। देखिएगा था, ये जैसे थॉट, था साउंड, और था द, ये दोनों साउंड्स जो हैं इनके अंदर आप देख लें कि डेंटल और इंटरडेंटल, द टिप ऑफ द ब्लेड ऑफ द टंग किसको टच करता है, अप्रोच करता है, टच द अपर टीथ, थ, ये बिल्कुल दोनों साउंड जो हैं इस तरह प्रोड्यूस होती है। अल्विलर, द टिप ऑफ द टंग टिप अप्रोचेस और टचेस द अल्विलर रिज। देखिएगा कल भी मैंने ये बताई थी, ठा ट, टिप ऑफ द टंग आप महसूस करें, ठा ठा, मेरे साथ आप प्रोड्यूस करेंगी तो आपको पता चलेगा, ठा ठा डा। आप देखें फ्रंट जो टिप ऑफ द टंग है ये फौरन अल्विलर रिज को टच करें, न स ज, और उसके बाद वो आई साउंड है, ई साउंड है, तो इससे भी आप देखेंगे कि आपकी टिप ऑफ द टंग जो है वो फौरन अप्रोच करेगी आपकी अल्विलर रिज को, ठ ड न स ज ट। तो इससे प्रोड्यूस होती है कौन सी साउंड,
ये अल्वीलर साउंड इसको कहते हैं। पैलेटल साउंड किसको, आई को आप ए कह लें। हाँ, इसमें लॉन्ग वावल भी होता है, शॉर्ट वावल। अगर आप लॉन्ग वावल है तो वो ई साउंड होती है, अगर शॉर्ट वावल है तो उसमें हम ए कह सकते हैं। तो ये शॉर्ट और लॉन्ग वावल हम जब देखेंगे तो उसमें इसको मजीद ये बिल्कुल यही है, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही। पैलेटल साउंड, द बॉडी ऑफ द टंग अप्रोचेस टचेस द हार्ड पैलेट एज इन ज। ये जो ज साउंड है, अब ज में देखें, द टंग बॉडी अप्रोचेस द हार्ड पैलेट। ज हमारी ऊपर जो मैंने बताया, पिक्चर से भी बताया कि ये यहाँ पे हार्ड पैलेट है, इसके पीछे सॉफ्ट पैलेट है। तो आप ज साउंड जैसे ज तो फौरन जो आपकी जो फ्रंट ऑफ द टंग है, जो आपकी वो फौरन टच करेगी ऊपर उसको हार्ड पैलेट को। द टंग बॉडी अप्रोचेस द हार्ड पैलेट बट क्लोजली एनफ टू क्रिएट टर्बुलेंस इन एयर स्ट्रीम। टर्बुलेंस का मतलब होता है, इसको रुकावट कह लें, प्रॉब्लम कह लें। क्रिएट टर्बुलेंस इन द एयर स्ट्रीम, एयर स्ट्रीम में एक टर्बुलेंस क्रिएट करती है। द टंग बॉडी अप्रोचेस अ हार्ड पैलेट बट क्लोजली एनफ टू क्रिएट द टर्बुलेंस इन द एयर स्ट्रीम। च वेलर साउंड, व्हीलर साउंड इसको कहते हैं, व्हीलर साउंड भी कहते हैं। द बॉडी ऑफ द टंग अप्रोचेस और टचेस द सॉफ्ट पैलेट, वेलर। ये हमने कल भी डिस्कस किया। ख ग गर्ल, कैट। और ये इंग साउंड होती है, इंग। इसमें भी देखें, इंग, सिंग। तो आप जरा बोल के देखें, ख शी इज नाइस गर्ल, इट्स कैट, इट्स माई कार। तो फौरन जो है आप देखेंगे कि आपका बॉडी जो टंग है वो किसको, सॉफ्ट पैलेट को टच करेगी, तो फिर ये साउंड प्रोड्यूस होगी, फिर एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन बनेगा इसका। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ग्लोटल साउंड है ये, हॉट। ये ग्लोटल, हमारे ये गले से एक साउंड निकलती है, इसको कहते हैं ग्लोटल। इज द ओपनिंग बिटवीन द वोकल फोल्ड्स इन एन हा, जैसे हा साउंड है, hot. This opening is narrow enough to create some turbulence in the air stream flowing past the vocal cord. Vocal cord से ये आपके हलक से आवाज निकली, hot। तो इसको कहते हैं हा साउंड। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ओरल भी, नेसल भी, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। अब नीचे आइएगा, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, प्लोसिव साउंड। एकदम हवा जो है वो बाहर निकले आपके मुंह से, उसको कहते हैं प्लोसिव साउंड। ये बात याद रखें कि प्लोसिव साउंड ऐसी साउंड होती है एक्सप्लोजन के साथ और स्टॉप, यानी एकदम एक्सप्लोजन हो और फिर स्टॉप हो। थिंक एक्सप्लोजन, आप सोचें कैसे एक्सप्लोजन होता है, फा बा, जरा कह के देखें फा, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे मुंह से एकदम हवा जो है सारी बाहर निकल रही है। फा बा ठा ख क। तो ये मैं अब पहले हमने क्या आर्टिकुलेटर्स, ऐसे आर्टिकुलेशन, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन हमने डिस्कस की। अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, अपने माइंड में रखिएगा, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, कि किस मैनर से हम आर्टिकुलेट करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, उसको कहते हैं मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन। आपके सामने असाइनमेंट है, इसमें जहां प्रॉब्लम हो साथ साथ पूछती जाएं। प्लोसिव साउंड, जब हवा एकदम बाहर निकलती है मुंह से, उसको प्लोसिव एक्सप्लोजन के साथ निकलती है और फिर स्टॉप हो जाती है, हम कहते हैं इसको प्लोसिव साउंड। बलेबियल साउंड, फ्रीकेटिव का मतलब होता है जब साइडों से हवा निकलती है, जो हमारा मुंह है ना, इसके साइडों से हवा निकले तो उसे कहते हैं फ्रीकेटिव साउंड। नीचे आ जाए, फ्रीकेटिव, थिंक फ्रिक्शन, लिबियोडेंटल, फ
व। अब फ कहते हैं तो ऐसे लगा हमारे ऐसे साइडों से, मुंह के कोनों से हवा निकल, क्या के देखें, व व स ज। प्लेटो और पोस्ट एल्विलर, श ज श साउंड, ये जो ऐसे इंटेग्रल सा बना होता है इसको कहते हैं श। शॉर्ट अगर आप कहते हैं, शूट कहते हैं, तो ये साउंड इससे जो बना हुआ है ये इंटेग्रल से, इसको शॉ कहते हैं, श साउंड। नेजल, नेजल मीन कि जो नाक से फील होता है ना, हमारे नाक से, और मैनर ऑफ आर्टिक नेजल साउंड कौन सी होती है, बलिबियल। आप जरा गौर से देखें, म क्या के देखें, साथ साथ कहें, आप बच्चों को भी टीच करें, उनको भी ये चीजें सिखाएं। न न इंग साउंड, जैसे सिंग, आप कहें सिंग, रिंग, फिंग, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे नाक से हवा, जैसे आवाज निकल रही है कोई। ये नीचे एन सा बना हुआ ना, ऐसे निकाला, ये इंग साउंड होती है, इससे भी सिंग। और उसके बाद न म, आप जैसे म कहेंगी, ना कहेंगी, फॉर न म फौरन आपके नाक से एक आवाज से निकलेगी, जिसको कहते हैं नेसल साउंड। अफ्रीकेटिव, अब अफ्रीकेटिव जो है, ये पहले हमने फ्रीकेटिव देखा, अब हम देख रहे हैं अफ्रीकेटिव्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉप और फ्रीकेटिव, यानी फ्रिक्शन और स्टॉप का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे एक साउंड बनती है, उसे कहते हैं अफ्रीकेटिव्स। देखिएगा, अगर हम ये होती है कि छा साउंड, बाज़ औक़ात हमें ये साउंड भी चाहिए होती है, जब टी और शॉ को दोनों को मिलाते हैं तो उससे बनती है छ छ छ, और नीचे के ज, ये दोनों साउंड इससे बनती है, इन दोनों को मिला के बनती है छ। जैसे चाइल्ड आपने लिखना हो तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, टी और इसके शॉ साउंड के साथ दोनों को मिला के, तो फिर ये चाइल्ड की साउंड देगा, चाइल्ड, चैट, चाक, जैज, ये डी जेड जो मिलाया हुआ है ये साउंड किसकी दे, ज ज ज, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉप ऑफ फ्रीकेटिव साउंड। अप्रोक्सीमेंट, आर्टिकुलेटर अप्रोच ईच अदर बट डू नॉट टच, डब्ल्यू व र च व। जैसे हम कहते हैं वॉच, व वेट, वॉच, तो वॉच और वेट, ये जो साउंड है ये वो कहता है आर्टिकुलेटर जो है अप्रोच करते हैं एक दूसरे को ईच अदर बट डू नॉट टच, र च, और उसके बाद व, तो इसको क्या कहते हैं, ये वॉच की साउंड, और रा साउंड, जा साउंड, ये इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेट। उसके बाद लेटरल जो है आल्सो कॉल्ड द लेटरल अप्रोक्सीमेट, एयर, वो जो आपने कहा ये वही साउंड है, फ्लो ओवर द साइड्स ऑफ टंग्स, या ये ऐसे साइड ऑफ द टंग, एयर, जैसे वो एयर है, तो एयर फ्लोज साइड ऑफ द टंग्स, आई, जैसे ए, तो ऐसे साइड ऑफ द टंग से ऐसे जैसे फ्लो होता है इसका, तो फ्लो ओवर साइड ऑफ द टंग्स, ए, ये वो साउंड है, लिटरल साउंड। नीचे देखें आप, नीचे तरह देखिएगा, सारी साउंड्स जो हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, उनका एक चार्ट बना हुआ है, उसको आप वॉइस्ड और वॉइसलेस सब बताया हुआ है, स्टॉप और फ्रीकेटिव्स, अफ्रीकेटिव और फ्रीकेटिव्स लिटरल साउंड, और उसके बाद नेजल साउंड्स, ग्लाइड्स, कौन सी वॉइस जो है वो ग्लाइड में बोली जाती है, ये भी आपको बताया हुआ है। लें जी, आज हमने इसको ही डिस्कस किया, कल इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि फोनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। फोनोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे ये वावल साउंड, कितने वावल हैं, और उसके बाद डिफ्थोंग को और मोनोथोंग को, डिफ्थोंग को डिस्कस करेंगे।
पहले हम वावल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कॉन्सोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। इनकी अलग अलग असाइनमेंट होती हैं, इनको हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, डायग्राम अगर बना दें आप तो अच्छी बात है, अगर बना सकती हैं। अगर ना बनाए तो इनको याद कर लें, मेरे ख्याल में बना लें, इतना मुश्किल नहीं है। बनाओ, अगर बनाओगे तो आपको फिर पता चल जाएगा कि ये साउंड मैंने जब इनको डिस्क्राइब करना है तो ये फोनेटिक्स में ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, तो उसको आप फिर वन बाय वन एक्सप्लेन कर सकती हैं कि भाई ये जो है ऑर्गन ऑफ स्पीच जो है ये फ़लाँ साउंड निकलती है, यहाँ से फ़लाँ निकलती है। तो अगर ये बना दें तो अच्छी बात है। अगर इसके बगैर आप एक्सप्लेन कर सकती हैं, ऑर्गन ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आता है तो वेल एंड गुड। और मेरे ख्याल में आप सीख लें, 2-3 दफ़ा वो बनाएंगी, ये बना हुआ आपके सामने, इसको देख लें, आपको आ जाएगा। आपने साइंस पढ़ी होगी, जिसने साइंस पढ़ी हो, बायोलॉजी पढ़ी हो, उसे तो वैसे ही ये चीज़ें पता होती हैं। आई होप यू कैन ड्रॉ इट। जब आपका मैं टेस्ट लूँगा तो आप उसमें मुझे ड्रॉ कर देना। इसको ऐसा करें, मैंने आपको स्नैपशॉट भी सेंड किए, उनको भी देखिएगा। इसके भी स्नैपशॉट लेके ना तो उसको आप कोशिश करें इसको देखने की अच्छी तरह और उसको ड्रॉ कर लें। बुक इंशाल्लाह आप जस्ट ना ऐसे टेंशन ले रही हैं, यही चीज़ें बुक्स में हैं। बुक में थोड़ी सी टफ लिखी हुई हैं, ये सिंपली चलो ये भी इकट्ठा कर लें। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह विज़िट करके ना तो किसी बुक डिपो के ये जिम्मे लगा देता हूँ, उधर से मंगवा देगा। ये मेरे पास है, नहीं तो मैं यही भेज देता, मेरे पास एक ही है। मेरे पास 1-2-3 और भी किताबें हैं लेकिन वो आपके काम की नहीं है। आपको यही पसंद है तो यही भेजेंगे आप। हैव अ नाइस टाइम।